Hello everyone, I am Abadur Rahman and this is second exercise 13th B of class 9th mathematics, chapter name circle. Here first question, in this question given that arc PQQR and RP subtended angle 4x minus 2 degree, 7x minus 18 degree and 6x plus 6 degree at the center. Okay, it is indicated that angle formed by these arc at the center. We know that complete angle is equal to 360 degree, means sum of all three angle is equal to 360 degree. Then we can find the value of x. After finding the value of x, substitute the value here 7x minus 18 and we get the value of QR, measurement of arc QR. Now let's see the solution of question number 1, first part. Okay, it is your figure. First of all, add all the angle is equal to 360 degree, means 4x minus 2 plus 6x plus 6 plus 7x minus 18 is equal to 360 degree. Clear? Sum of all angle is equal to 360 degree. Now calculate the equation and find the value of x. 4x plus 6x, 10x plus 17, so 17x and minus 2 minus 18 minus 20 plus 13 is equal to minus 20 plus 17 is equal to minus 13. We write here minus 13 means 360. Now for 17x is equal to 360 plus 13. It's mean x is equal to 373 upon 17. Solve this fraction and find the value of x. X is equal to 6 here, no? So 8 to 20 and 6, it is 14. 14 means it is also 14 and here हो जाएगा. Okay, now divide 17 to the 34, 17 to the 34 means x is equal to 22 degree. So x is equal to 22 degree. Now measurement of QR is equal to 7x minus 18. Now substitute the value of x. 7 multiplied by 22 minus 18, 154 minus 18 is equal to 136 degree. It is the measurement of angle formed by Q arc. Clear? Now second part of question number 1. Okay, it is the figure of question number second part. First question, second part. It is second part. Okay. Now in this figure it is given that find the measurement of arc angle BOC. हम लोगों को angle BOC करना. First of all complete the figure. Here point A, D, O, B, C. Here angle 10y, it is angle 10y degree and here angle 6y degree. Now find the angle of measurement BOC. ये फाइंड करना है आपको कि ये कितना होगा. तो ये एंगल तो हम तब फाइंड कर पाएंगे जबकि हमें y की वैल्यू मालूम हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अब देखिए इस फिगर से ये क्लियर हो रहा है कि ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री ना. मीन्स वी कैन से दैट 10y इज इक्वल टू 180 डिग्री. 10y इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट्स मीन एंगल y इज इक्वल टू 18 डिग्री ना. 0 0 कैंसिल आउट. इफ y इज इक्वल टू 80 डिग्री मीन्स एंगल BOC कितना था, 6y. सो मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 18 is equal to 108 degree as a angle BOC. Clear? Now third part of question number 1. Okay, it is the third part of question number 1. In figure here point A, B, C, B and center O. Angle यहाँ पे कितना बन रहा है, 8y minus 8 degree. Here 8y minus 8 degree. 8y minus 8 और ये एंगल कितना बन रहा है, 6y. इट इज़
6y, इट इज़ गिवन इन योर बुक, ओके फिगर। अब आपसे कहा है इफ़ AC इज इक्वल टू BC, इफ़ AC इज इक्वल टू BC मीन्स अगर से कॉर्ड सेम है तो 100% सबटेंडेंट एंगल भी सेम होगा। इफ द कॉर्ड आर इक्वल गिवन AC इज इक्वल टू BC, इट इज़ गिवन मीन्स ये एंगल आपका सेम है। तो कितना हो जाएगा 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 6y। नाउ 8y minus 6y is equal to 8, or we can say that 2y is equal to 8 means y is equal to 8। अब आपसे पूछा गया था कि फाइंड एंगल AOC, वेयर इज AOC? AOC मीन्स 8y माइनस 8, तो इसमें सिंपली वैल्यू ला के रख देते हैं। एंगल AOC इज इक्वल टू 8y माइनस 8, अब ला के वैल्यू पुट कर दीजिए। 8 8 जा 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 मीन्स 56 एज ए आंसर। तो 56 एज ए आंसर, ये तो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट। ओके, इट इज़ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, फोर्थ पार्ट। इन दिस ट्राइंगल A एज ए सेंटर एंड इफ एक और सर्किल ऐसे यहाँ पर सर्किल बना लेते हैं। ओके लिसन, इन फिगर फाइंड एंगल, ये A हो गया, यहाँ पे आपका D है, ये C है। ओके, और क्या क्या मालूम है? हियर B, E एंड F, ये एंगल है 45 माइनस 6x, गिवन इट इज़ 45 माइनस 6x एंड हियर 9x। और देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ ऐसे लिखा हुआ है A इज इक्वल टू B, मीन्स इफ टू सर्किल आर सेम, मीन्स उसकी रेडियस सेम हो, सेंटर सेम, सॉरी रेडियस सेम हो सर्किल की, एंड CD इज इक्वल टू EF, ये आर्क CD इज इक्वल टू CF। तो अगर EF, तो अगर से सर्किल की रेडियस सेम है और आर्क सेम है तो एंगल भी सेम बनेगा। इट्स मीन वी कैन से दैट 45 माइनस 6x इज इक्वल टू 45 माइनस 6x इज इक्वल टू 9x। नाउ 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 15x। इफ 15x इज इक्वल टू 45 मीन्स x इज इक्वल टू 45 अपॉन 15 मीन्स 15 3 जा 45। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई। आपसे पूछा क्या था, एंगल EBF बताना था, ये कितना है 9x, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 डिग्री। क्लियर, यहाँ पे कहीं लगा दीजिएगा, एंगल EBF इज इक्वल टू 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 मीन्स 27 डिग्री। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Okay, it is fifth part of question number 1. In this question, given that here point T, P, Q, T, P, Q, O, R, S, it is 100 degree and here 55 degree, 155 degree. Clear? Now find the angle of formed by आर्क PR. वेयर इज PR? इसके ज़रिए से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। एंड एंगल PRT, ये पूरा एंगल आपको बताना है कि ये कितना होगा। पहले बताना है PR कितना, ये पूरा एंगल कितना, उसके बाद PT। ये 55 है तो ये भी 55 होगा ना, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। मीन्स वी कैन से दैट एंगल POQ is equal to 55 degree. Why? It is by vertically opposite angle. Clear? एक रीज़न तो ये हो गया, हमको फाइंड करना था एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क PR। ये आर्क कितना सबटेंड करेगा एंगल पे, PR मीन्स ये पूरा आर्क है ना PR, 100 प्लस 55, 100 प्लस 55 इज इक्वल टू 155 एंगल। एक हो गया काम। सेकेंड आपसे पूछा है एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क PRT।
पी आर टी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल आपको बताना है ये कितना होगा। क्लियर? तो देखिए ये एंगल कितना है आपका 180, स्ट्रेट लाइन है ना, प्लस 55 और मीन्स एंगल फॉर्म्ड बाई आर पी आर टी। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी आर टी, इट इज टी, पी आर टी इज इक्वल टू 100, ये 80, ये 180 प्लस 55 प्लस 180। अब इनको हम ऐड कर लें, बस आंसर हो गया 235 आपका एंगल फॉर्म्ड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द आर्क पी आर टी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट, इट इज फिफ्थ पार्ट ना, नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, it is sixth part figure. Here two chord intersect each other like this. Okay, point A, D, B and C, angle measured here y degree and here 4y degree, और ये है आपका 68 डिग्री। क्लियर? आपसे कहा गया इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो जाहिर सी बात एंगल इक्वल होगा। गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी का एंगल कितना है 4y प्लस वाई, 4y प्लस वाई इज इक्वल टू सी डी, यानी कि y प्लस 68, तो y to y cancel out means 4y is equal to 68, और simply y is equal to 68 upon 4, 17 degree as a value of y। आपसे क्या है find the measurement angle subtended by the arc MAB, ऐसे पूछा है measurement of arc AB। AB की वैल्यू क्या होगी? AB मीन्स कितना हो गया y प्लस 4y ना, ये AB है आपका, तो AB का एंगल कितना हो गया 4y प्लस y मीन्स 5y। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, इट इज 85। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सपोज इट इज अ फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज गिवन दैट triangle PQR is inscribed in a circle. Suppose a triangle PQ and R is inscribed in a circle, means ऐसा triangle जिसके तीनों वर्टिसेस से एक सर्किल होकर जा रहा हो, ये टच है। क्लियर? inscribed in a circle, एंगल P is equal to एंगल Q, एंगल P is equal to एंगल Q, ये एंगल सेम है। प्रूव दैट आर्क PR is equal to arc QR, PR is equal to QR, ये हमको सेम प्रूफ दिखाना है कि ये एंगल भी वो आर्क भी आपका सेम एंगल बनाएगी। ओके, गिवन एंगल P is equal to एंगल Q। क्लियर? वी नो दैट in a triangle if two angles are equal then its opposite sides are also equal, means P के opposite side कौन सा है QR is equal to इसके opposite PR। okay, if in a circle chord are equal then arc are also equal, अगर chord equal है तो arc भी equal होगा, means we can say that arc QR is equal to arc PR, सॉरी ये PR हो गया, ये PQ मैंने लिख दिया PR। ओके, PR आर ऑल्सो इक्वल। देखिए एंगल Q के अपोजिट PR है ना, तो बस ये प्रूफ करना था और कुछ नहीं। इज इट क्लियर? अगर से एंगल सेम है तो उनका अपोजिट साइड सेम होगी, और अगर से साइड कोई कॉर्ड सेम है तो उसकी आर्क भी सेम होगी। Okay, it is question number 3rd, figure of question number 3. In this question given that AB is equal to CD, means AB is equal to CD, given AB is equal to CD. Okay, prove that AC is equal to BD, prove that AC is equal to BD। हमको ये मालूम है कि ये जो लाइन है वो आपकी इक्वल है, एंड डॉटेड लाइन को शो करना है कि वो आपकी सेम होगी।
अच्छा, अब ज़रा सा देखिएगा, अगर से किसी भी सर्किल की कोई कॉर्ड सेम होती है तो जो आर्क होता है वो भी सेम होगा। मीन्स आर्क ए बी, आर्क ए टू बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, आर्क सी डी। क्लियर? अब देखिए ए बी एंड सी डी में ये वाली आर्क दोनों में है ना, ए बी में भी आ रही है और सी बी में भी आ रही है। अगर इसको माइनस कर दें दोनों में से, आर्क ए बी माइनस आर्क ए डी इज इक्वल टू आर्क सी डी माइनस आर्क ए डी। क्लियर? तो अगर सेम वैल्यू माइनस करेंगे सेम चीज़ में से तो रिजल्ट भी सेम आएगा। मीन्स आर्क सी ए इज इक्वल टू आर्क डी बी। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये मालूम था कि कॉर्ड सेम है तो आर्क सेम होगा, यहाँ पर इसका अपोजिट, इफ़ आर्क आर इक्वल मीन्स आर्क सी ए इक्वल है डी बी के, तो ये जो कॉर्ड हुई वो भी सेम हो जाएगी। मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, यही शो करना था। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिगर यही होगा, सिर्फ आपसे ये कहा है कि गिवन ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब अब ये मालूम है, एंड शो दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। मीन्स ये मालूम है, ये प्रूफ करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, ये मालूम था, ये प्रूफ करना है। तो जस्ट कन्वर्स इसका कर दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये इस तरीके का करिएगा तो समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 वी विल सॉल्व इन next video. From question number 5 to question number 9 we will discuss in next video. Thank you everyone. Goodbye.